Assalamu alaikum and good morning, dear students. In our last class, we have discussed about the different code systems, the code systems for converting the text, and then we have discussed about images or graphics. We have seen two types of images are there, the bitmap graphics and vector graphics. And in bitmap graphics, we had discussed two cases, the black and white images and the grayscale images, that how these two type of images are converted into binary form. Today we will talk about the bitmap images, but the third case, that is of colored image. And then we will talk about vector graphics. We also talk about audio representation, and finally we will talk about the video representation. Okay, so let's start. So the third case of bitmap images is a colored image, where the pixels are colored pixels. As you know, we had discussed that there are three types of bitmap images: black and white images, where the colors are made up of the black and white pixels, and in grayscale images the colors are made up of the grayscale pixels, while the third one is where the colors are made up of three basic colors. As you know, this world, this beautiful world, is made up of only three basic colors. Well, this will be little bit surprising for few students, that there are only three basic colors: RGB, red, green and blue, and all other colors are formed by the combination of these three colors, these three basic colors. This can be surprising for few students, that how millions of colors can be formed with the help of these three basic colors. We will see this in this lecture. I will also try to discuss it in Urdu, because some students have problems and they have requested to speak in Urdu as well. So we will also talk about in Urdu in this lecture for better understanding, because the purpose is to understand. Language is not a problem. So this beautiful world, ये खूबसूरत दुनिया, सिर्फ तीन बेसिक कलर्स, तीन बुनियादी कलर्स से मिलकर बनी हुई है. दिस कैन बी सरप्राइजिंग फॉर फ्यू स्टूडेंट्स. आई मीन only three colors, red, green and blue, and by the combination of these three basic colors, millions of colors can be formed. We will see this, ये हम देखेंगे इस लेक्चर में. Okay, the difference between one color to another color depends on the intensity of RGB colors in a particular color. What does it mean? एक कलर से दूसरे कलर के दरमियान जो डिफरेंस है वो उनकी सिर्फ इंटेंसिटी का फ़र्क है. जो RGB कलर्स, किसी भी कलर के अंदर जो तीन बेसिक कलर्स मिक्स किए होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, रेड, ग्रीन एंड ब्लू की इंटेंसिटी का जो फ़र्क है उसकी वजह से दूसरे कलर्स बन सकते हैं. अब इंटेंसिटी क्या है ये हम देखेंगे. तो सिर्फ इंटेंसिटी चेंज करने से एक रेंज ऑफ इंटेंसिटीज़ है, वो हम देखते हैं आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड्स में, कि वो इंटेंसिटी चेंज कर देने से सिर्फ दूसरे कलर्स बन जाते हैं. रेड की थोड़ी इंटेंसिटी चेंज कर दें, ग्रीन की चेंज कर दें, ब्लू की चेंज कर दें, तो दूसरा कलर बन जाता है. वी विल सी दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. Okay, so therefore to represent a colored image, each pixel in the image must be represented by three different bit patterns. कलर्ड इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली आपने किसी भी बिट जो है उसका बिट पैटर्न्स को थोड़ा चेंज कर दें
तो वो बिट का कलर चेंज हो जाएगा। वो बिट का कलर चेंज हो जाएगा तो पूरी स्क्रीन के ऊपर जो आपके पास इमेज आ रही है उसके कलर्स चेंज हो जाएंगे, और इस तरह से वो आप ये जो 3 बिट पैटर्न है उसको उसके अंदर चेंजेस करके आप कलर्स बना सकते हैं, नए कलर्स बना सकते हैं। ईच ऑफ देम रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ द बेसिक कलर्स। उनमें से हर एक बिट जो है वो रिप्रेजेंट करेगी इन बेसिक कलर्स के अंदर डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल्स को। द लेंथ ऑफ अ बिट पैटर्न रिप्रेजेंटिंग ईच बेसिक कलर इज यूजुअली 8 बिट्स। एक बिट पैटर्न जो इसके अंदर होगा, फॉर एग्जांपल रेड के लिए जो बिट पैटर्न है उसकी 8 बिट्स चाहिए होंगी, ग्रीन के लिए जो बिट पैटर्न है उसकी 8 बिट्स चाहिए होंगी, और जो ब्लू के लिए बिट पैटर्न है उसके लिए भी 8 बिट्स चाहिए होंगी। हो सकता है आपको क्लियर नहीं हो रहा हो, इसको हम फर्दर देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक at this figure. As you can see, now the numbers on the right hand side represent one bit on the screen, a colored bit, or rather I will say a pixel, एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर रेड, ग्रीन और बिट्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। आप देखें रेड की जो वैल्यूज़ यहाँ पर हमने सेट किए हैं, दे आर ऑल वंस। जो ऑल 8 बिट्स हैं दे आर सेट टू 1, ग्रीन की ऑल 8 बिट्स आर सेट टू 0, एंड ब्लू की ऑल 8 बिट्स आर सेट टू 0। एंड रेड इज हैविंग द 100% इंटेंसिटी, मीन्स रेड इज मिक्सड विद इट्स 100% इंटेंसिटी। इसमें रेडनेस, रेड की जो इंटेंसिटी मीन्स इस रेडनेस, इसकी रेडनेस कितनी है 100%। ग्रीन बिल्कुल मिक्स नहीं किया गया, ब्लू बिल्कुल मिक्स नहीं किया गया। तो जो आपके पास कलर बनेगा दैट विल बी अ प्योर रेड कलर। इसी तरह आप सेकेंड रो में देखें, ग्रीन इज हैविंग द हाईएस्ट इंटेंसिटी, दैट इज 100% इंटेंसिटी। एज यू कैन सी ग्रीन की ऑल 8 बिट्स जो हैं वो 1 पर सेट की गई हैं, जबकि 0 रेड की तमाम जो बिट्स हैं वो 0 हैं, और ब्लू की तमाम बिट्स, ऑल 8 बिट्स आर सेट टू 0। सिमिलरली इन द थर्ड रो द ब्लू कलर इज रिप्रेजेंटेड with 100% intensity of blue. I mean all the bits are set to 1 for blue, and all the bits of green are set to 0, and all the bits of red are set to red. तो इस तरह से ये रेड, ग्रीन और ब्लू कलर बन रहे हैं, प्योर रेड, प्योर ग्रीन एंड प्योर ब्लू, जिस पे कि रेड इसकी हाईएस्ट इंटेंसिटी है और ग्रीन और ब्लू 0 मिक्स किए गए हैं। सिमिलरली सेकेंड रो में ग्रीन हाईएस्ट इंटेंसिटी है, रेड और ब्लू 0 मिक्स किए गए हैं। सिमिलरली थर्ड रो में ब्लू की हाईएस्ट इंटेंसिटी है और रेड और ग्रीन 0 मिक्स किए गए हैं। लेकिन अगर आप फोर्थ रो में देखें तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। अगर आप रेड की तमाम बिट्स को ऑन कर दें, यानी इसको 1 पे सेट कर दें, और ग्रीन की तमाम बिट्स को 1 पे सेट कर दें, और ब्लू की तमाम बिट्स को 1 पे सेट कर दें, तो कौन सा कलर फॉर्म होगा? विच कलर विल बी फॉर्म? ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वाइट कलर, अदरवाइज इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर फ्यू स्टूडेंट्स के जब आप रेड, ग्रीन और ब्लू विद देयर हाईएस्ट इंटेंसिटीज मिक्स करेंगे तो द कलर फॉर्म्ड विल बी वाइट कलर। ओके, सो बात समझ में आ रही होगी अभी कुछ। अगर हम रेड की तमाम बिट्स 0 रख दें, ग्रीन की तमाम बिट्स 0 कर दें और ब्लू की तमाम बिट्स 0 कर दें, तो कौन सा कलर फॉर्म होगा? कैन यू इमेजिन? ये आपके लिए मैं सवाल छोड़ रहा हूँ, ये आपने करना है। ये इट्स अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट विच यू कैन डू इन सिंपली MS पेंट। MS पेंट के अंदर जाके आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसमें आप देखेंगे कि MS पेंट में कलर्स बनाने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्सेस दिए जाते हैं, जिसमें आप 0 से लेकर 255 तक वैल्यूज़ उसमें सेट कर सकते हैं। यानी मिनिमम वैल्यू रेड की 0 और मैक्सिमम वैल्यू 255 है। और यही वजह है कि आप देखें कि रेड की जब हम ऑल बिट्स 1 करते हैं, तो अगर आप ये बाइनरी नंबर 8 बिट बाइनरी नंबर को आप इसको कन्वर्ट करें तो ये बेसिकली इट्स इक्विवेलेंट टू 255 इन डेसिमल।
ये डेसिमल में 255 के इक्वल है। तो आप इसकी वैल्यूज़ रेड की 0 से लेकर 255 तक, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 256 वैल्यूज़ आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं 0 से 255 तक। सिमिलरली ग्रीन की 0 से 255 तक, सिमिलरली ब्लू की 0 से लेकर 255 तक आप वैल्यूज़ सेट कर सकते हैं। इस तरह आप डिफरेंट वैल्यूज़ रखते जाएँ तो डिफरेंट कलर्स बनते जाएंगे। आप रख के देखें तमाम रेड, तमाम ग्रीन और तमाम ब्लू को 0 पर, देखें कौन सा कलर बनता है। ओके, और इस तरह से फिर वैल्यूज़ चेंज करते जाएं 1 2 3 4 5 अप टू 255 फॉर रेड। इस तरह से ग्रीन में फिर कॉम्बिनेशंस करके देखें, फिर इसी तरह से ब्लू में ये कॉम्बिनेशंस करके देखें, तो आप देखेंगे कि मिलियंस ऑफ कलर कैन बी फॉर्म्ड बाय ओनली सेटिंग द इंटेंसिटी लेवल्स ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू फ्रॉम 0 टू 255। फाइनल रो में ये मैंने एक कैलकुलेशन शो की है। इसमें आप देखें कि रेड की हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ कैन बी सेट फॉर रेड। ऑब्वियसली 0 से लेके 255 तक 256 वैल्यूज़ कैन बी सेट। सिमिलरली फॉर ग्रीन 256 वैल्यूज़ कैन बी सेट, एंड सिमिलरली फॉर ब्लू 256 वैल्यूज़ कैन बी सेट। सो अगर आप इनका कॉम्बिनेशन निकालना चाहें तो बेसिकली ये इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 256 मल्टीप्लाई बाय 256 मल्टीप्लाई बाय 256, दैट विल बी इक्वल टू more equal to 16 million and even more than 16 million colors. In fact it is 16,777,216 colors. ओके, ये 16 मिलियन कलर से भी ज़्यादा कलर्स आप फॉर्म कर सकते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू के 3 बेसिक कलर के कॉम्बिनेशन से। तो ये आपने करके देखना है, इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ सेट करनी है। सिंपली MS पेंट में जाके 0 से 255 की रेंज होती है, इसको आप चेंज करके देखें कि आप कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, और इसका जवाब आप मुझे देना है आपने व्हाट्सएप ग्रुप में, या इवन आप इस यूट्यूब वीडियो में कमेंट्स में आप मुझे इसका रिप्लाई दे सकते हैं कि कौन सा कलर बनता है। और अगर आप कोई और कलर कॉम्बिनेशन इंटरेस्टिंग फाइंड आउट करते हैं तो उसको भी बताना है कि ये कैसे बन रहा है। सो दिस इज़ हाउ colors can be formed by only combining 3 basic colors, that is red, green and blue. I'm sorry. इस रेड, ग्रीन और ब्लू के सिंपल कॉम्बिनेशन से आप बिलियंस ऑफ कलर बना सकते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट किस तरह करना है, ये रेड, ग्रीन और ब्लू जो 3 8 बिट्स के कलर्स हैं, इनकी इंटेंसिटी लेवल्स जो बता रहे हैं, ये एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करते हैं। दे रिप्रेजेंट ओनली 1 पिक्सल ऑन द स्क्रीन। सो एक पिक्सल का अगर आपने कलर शो करना है तो आपको इसकी 3 वैल्यूज़ ये बतानी होंगी कि इस पिक्सल में रेड की कितनी वैल्यू है, ग्रीन की कितनी वैल्यू है और ब्लू की कितनी वैल्यू रखी हुई है। तो इस तरह से आप कलर्ड इमेज बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कलर्ड इमेज इज़ नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन। तो इसको आप शो करवा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और इसको कन्वर्ट किस तरह से किया जाएगा ये आपने देखा है अभी कि इसकी डिफरेंट आपने बाइनरी वैल्यूज़ देखी हैं। इसको आप इजीली स्टोर करवा सकते हैं सिस्टम के अंदर, और सिस्टम इनको प्रोसेस कर सकता है बाइनरी नंबर फॉर्मेट में, विच इज़ द नेटिव फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटर। Okay, now move on to vector graphics. We have seen that the bitmap graphics are represented by the individual bits on the screen, or the individual pixels on the screen, and we have to count all the pixels on the screen in order to represent bitmap graphics. What I mean, एक बिट मैप ग्राफिक्स जो है, बिट मैप इमेज जो है, उसको आप अगर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं स्क्रीन के ऊपर तो आपको तमाम पिक्सल्स काउंट करनी पड़ती हैं, तमाम पिक्सल्स को आपको स्टोर करवाना पड़ता है। तमाम पिक्सल का क्या स्टोर करवाना पड़ता है, बेसिकली उस तमाम पिक्सल की RGB वैल्यूज़ आप स्टोर करवाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिपीट, बिट मैप ग्राफिक्स में आप बेसिकली जो अब उसको स्टोर कर रहे होते हैं तो उसकी तमाम पिक्सल वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे होते हैं। तमाम, अब हर पिक्सल वैल्यू क्या कंटेन करती है, एवरी पिक्सल वैल्यू कंटेन्स द RGB कलर्स, RGB इंटेंसिटी लेवल्स, वो आप स्टोर करवा रहे होते हैं। ओके, बट इन वेक्टर ग्राफिक्स स्टोरी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इंस्टीड ऑफ स्टोरिंग ऑल द पिक्सल्स, we store the mathematical formula for that
vector graphics. Let's see. इमेज इज डीकम्पोज इनटू लाइन्स एंड कर्व्स. कोई भी इमेज जो है उसको आप डीकम्पोज कर सकते हैं लाइन्स और कर्व्स में. इसमें कुछ लाइन्स हो सकती हैं, कुछ कर्व्स हो सकती हैं. ईच कर्व एंड लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मैथमेटिकल फार्मूला. यू नो, मैथमेटिकली every line can be represented and every curve can be represented. So instead of storing all the bits, the mathematical formula is stored. No bit patterns are stored here. कोई bit pattern इसमें store नहीं किए जाते. For example, a line is described by its coordinates. आपको पता है एक line के 2 coordinates होते हैं. अगर आप वो 2 coordinates सिर्फ store कर दें तो line can be constructed again. वो लाइन दोबारा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. द सर्कल इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर एंड लेंथ ऑफ द रेडियस. सर्कल को आप किस तरह स्टोर करवा सकते हैं? उसके लिए आपको उसका सेंटर पॉइंट चाहिए और उसका रेडियस चाहिए होता है. तो बाय नोइंग द सेंटर पॉइंट एंड बाय नोइंग द रेडियस of a circle, you can store a circle and you can reconstruct a circle. Only you need to store the center point and the radius and not all the bit patterns. इसमें तमाम बिट पैटर्न्स को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती. इसका क्या एडवांटेज है? द एडवांटेज ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इज दैट इमेज कैन बी स्केल्ड बाय मल्टीप्लाइंग द फार्मूला बाय द स्केल फैक्टर विदाउट इफेक्टिंग द इमेज रेजोल्यूशन एज इन बिट मैप रिप्रेजेंटेशन. व्हाट डज इट मीन? अब अगर आपको इमेज को स्केल भी करना है, यानी आपको जूम इन करना है, उसको बड़ा करके दिखाना है, जूम आउट करना है या जूम इन करना है, तो उसको उसका साइज़ रिड्यूस करना है या लार्ज करना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, जितना आपने जूम इन या जूम आउट किया है उसको उतना स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा जितना आप बड़ा करना चाह रहे हैं. तो वो इमेज डिस्टॉर्ट नहीं होगी, बिगड़ेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी. सिंपली उससे वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा. ओके, तो इमेज का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं. ये एक एडवांटेज है. व्हाट कैन बी अनदर एडवांटेज? इसका एक और एडवांटेज भी हो सकता है. वो क्या है? देखें, यू डोंट नीड टू स्टोर ऑल द बिट पैटर्न्स. जब आपने तमाम बिट पैटर्न्स स्टोर नहीं करने, तो इसका मतलब है कि आपको तमाम बहुत कम वैल्यूज़ जो है स्टोर करनी पड़ेंगी. अगर आपको बहुत कम वैल्यूज़ स्टोर करनी पड़ेंगी तो उससे क्या होगा? फाइल साइज़ विल बी रिड्यूस्ड. फाइल का साइज़ जो है वो कम हो जाएगा एंड इट विल टेक लेस स्पेस इन द मेमोरी और इन द स्टोरेज. इट विल बी ईजी टू बी प्रोसेस्ड. तो ये इसके एडवांटेजेस हो जाएंगे. सो ये थोड़ा सा हमने देखा कि कलर्ड इमेज बिट मैप में किस तरह स्टोर करवाते हैं. फिर हमने देखा वेक्टर ग्राफिक्स, उसको मैथमेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने देखा कि उसके सिंपली अगर कोई लाइन है तो उसके कोऑर्डिनेट्स स्टोर करवा दिए जाएंगे. कोई सर्कल है तो उसका रेडियस और उसका सेंटर पॉइंट स्टोर करवा दिया जाएगा. और वो पॉइंट्स क्या होंगे? नंबर होंगे. और नंबर को स्टोर करवाना आपके लिए बहुत आसान है. उसको इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में और ये दे कैन बी स्टोर्ड. सो अनदर टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन इज द ऑडियो रिप्रेजेंटेशन. अभी तक हमने देखा है टेक्स्ट या नंबर और इमेजेस को किस तरह स्टोर करवाया जाता है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ऑडियो रिप्रेजेंटेशन. ऑडियो किस तरह हम, साउंड को किस तरह हम स्टोर करेंगे. तो साउंड लुक्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ डेटा. यू नो, साउंड is basically the analog signal and your computers can only understand the digital signals. So it means we will have to convert this analog signal into digital format. Let's see how it happens. As you know, audio is a sound and sound signal is analog signal by nature. जब आप बात करते हैं तो आपकी जो साउंड वेव्स हैं या साइन वेव्स हैं वो एक सोर्स से दूसरी डेस्टिनेशन तक एनालॉग फॉर्म में ट्रेवल करती हैं. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो सिग्नल रिक्वायर्स कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल. एनालॉग टू डिजिटल, ए टू डी, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल में आपको इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है. लेट्स सी हाउ इट हैपन्स. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस फिगर. एज यू कैन सी हियर, आई एम सॉरी, as you can see in this image,
आपको एक साउंड सिग्नल नज़र आ रहा है. Sound signal, is an analog signal, is a continuous signal, and it contains an infinite range of values. अगर आप एम्पलीट्यूड लेवल्स की बात करें, एम्पलीट्यूड की बात करें, तो देर आर इनफाइनाइट लेवल्स. ओके, एक लेवल और दूसरे लेवल के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो सकती हैं, जिसको स्टोर करना बहुत मुश्किल है. और एनालॉग को स्टोर करना वैसे भी कंप्यूटर्स के लिए पॉसिबल नहीं है, उसको डिजिटल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. So how it happens? So firstly we do sampling. What is sampling? सैम्पलिंग में हम सिंपली ये जो एनालॉग सिग्नल दिया गया है, इसके आप अगर देखें तो हमने इसके कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज़ ले ली हैं. रादर देन ऑल द वैल्यूज़ वी हैव सिलेक्टेड few values from this analog signals. So the selecting of finite number of values from an analog signal to represent it in a digital format is called sampling. Sampling में आप एनालॉग सिग्नल्स के मुख्तलिफ जगह पर सैम्पल्स ले लेते हैं किसी ख़ास टाइम इंटरवल के बाद, कुछ ख़ास मिली सेकेंड्स के बाद आप कह लें, आप उसके डिस्क्रीट वैल्यूज़ उठा लेते हैं, वहाँ से उसकी एम्पलीट्यूड लेवल्स वो उठा लेते हैं. रादर दैन उसकी तमाम वैल्यूज़ लेने के आप कुछ डिस्क्रीट, जैसा कि आप देख सकते हैं सैम्पलिंग के बाद जो आपको नज़र आ रहा है इमेज में कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ वी हैव चोजन सम डिस्क्रीट वैल्यूज़. आप देखें जहाँ पर एम्पलीट्यूड बिल्कुल ज़ीरो है सेंटर में, वहाँ पर कुछ वैल्यूज़ भी नहीं ली गई. उसके बाद कुछ जहाँ पर हायर एम्पलीट्यूड है तो हाई वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है उसको. तो वी हैव टेकन सम डिस्क्रीट वैल्यूज़ from the given audio signal. तो इस तरह से we have got the discrete values, some numbers. Discrete values are some numbers. Number represent the amplitude levels of this analog signal, that is an audio signal. And then we do quantization. Quantization is nothing but आप उसमें क्या करते हैं कि वो जो आपने सैम्पल्स लिए होते हैं, दे मे बी अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज़, उसमें से आप फर्दर उसको किसी जो डिफाइंड आपका सेट है उसमें जो वैल्यूज़ आपने डिफ़ाइन की हुई हैं सिर्फ वो वैल्यूज़ ले लेते हैं. बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ लेने के बजाय कुछ मखसूस वैल्यू ले लेते हैं. इस तरह के आपका सिग्नल जो है वो ख़राब भी नहीं हो, कुछ वैल्यूज़ में से लॉस भी नहीं हो, लेकिन आपका जो सेट बने वो डिफ़ाइंड सेट हो, डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज़ आप ले लेंगे. आई होप यू गॉट दिस आइडिया. आई रिपीट इट अगेन. एनालॉग सिग्नल से आपने सैंपल लिए, सैंपल में आपने सिलेक्टेड वैल्यूज़ उठा ली, ये आपने सैम्पलिंग कर दी. सैम्पलिंग के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, निक्वेस्ट का थ्योरम है, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते कितने सैंपल्स आपने लेने हैं. बट सिंपली आप ये देखें कि एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल को आपने डिस्क्रीट वैल्यूज़ वहाँ से ले ली हैं और ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ रिप्रेजेंट अब कर रही हैं किसी नंबर्स को. तो ये नंबर्स जो होते हैं इसकी बहुत बड़ी रेंज हो सकती है. उस रेंज को थोड़ा सा कम करने के लिए हम क्वांटाइजेशन कर लेते हैं. क्वांटाइजेशन में हम वो नंबर्स लेते हैं जो हमारे पास जो डिफाइंड सेट ऑफ नंबर्स हैं उसको उठा लेते हैं सिर्फ, बाकी में भी डिस्कार्डेड. सो वी हैव टेकन सम डिफाइंड वैल्यूज़ and as you can see these values may be 4, 6, 25, 15, all these are what numbers. And now when you have got the numbers, these numbers can be very easily converted into binary format. These are maybe the decimal numbers, and these decimal numbers can be easily converted from decimal to binary format. As you can see, it can be done with the help of coding. Just you need to convert these numbers into binary coding, and they can be then stored in the storage, or they can be processed by the computer system, because it is the system is only capable of working on the binary numbers. So this is how audio is converted from analog to digital format with the help of sampling and quantization. Okay, so the last one is video representation. अभी तक हमने देखी हैं कि टेक्स्ट या नंबर्स को किस तरह आप कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हमने ASCII कोड और दूसरे कोड सिस्टम देखे. सिमिलरली
फिर हमने देखा कि इमेज को किस तरह कन्वर्ट करते हैं. इमेज में हमने देखा कि ब्लैक एंड वाइट इमेज, कलर्ड इमेज, ग्रे स्केल इमेज, हाउ दे आर कन्वर्टेड. And then we have seen that how audio signals are converted. Now let's see how video is converted. Video looks a very complicated type of data, but you know, video is a series of images which are shown sequentially one after another. As you know, video is also called movie. Movie is nothing but the moving pictures. मूवी इज़ नथिंग बट द मूविंग पिक्चर्स. मूवी में मूविंग पिक्चर्स ही होती हैं, पिक्चर्स ही मूव कर रही होती हैं. यू नो, अगर एक ख़ास रेट के ऊपर पिक्चर्स को मूव करवाया जाए तो आपको मूवी का गुमान होता है. दिस इज़ एन इल्यूजन ऑफ अ मूवी. मूवी इज़ एन इल्यूजन. मूवीज़ आर द मूविंग पिक्चर्स वेयर डिफरेंट फ्रेम्स मीन्स पिक्चर्स, इंडिविजुअल पिक्चर्स. अगर आप उसको किसी खास रेट पर, फॉर एग्जांपल 30 फ्रेम्स पर सेकंड, अगर एक सेकंड में 30 फ्रेम्स मूव करवा दें, 30 फ्रेम्स की एनिमेशन दिखा दें, 30 मिनट्स फ्रेम्स एक सेकंड के अंदर आप मूव करवा दें, तो इट विल लुक लाइक अ मूवी और अ वीडियो. सो वीडियो इज़ नथिंग बट दी सीरीज ऑफ इमेजेस which are shown sequentially one after another. sequentially, सीक्वेंस में ऑब्वियसली आप दिखाएंगे तो आपको सही मूवी पर नज़र आएगी. तो सो वीडियोज़ आर व्हाट सीरीज़ ऑफ इमेजेस जो किसी ख़ास सीक्वेंस में होती हैं, उसको वन आफ्टर अनदर किसी ख़ास फ्रेम रेट पर, फॉर एग्जांपल 30 फ्रेम पर सेकंड, ये एक स्टैंडर्ड है. इस पर अगर आप दिखाएंगे तो आपको मूवी का गुमान होगा, आपको चलती फिरती तस्वीरें नज़र आएंगी. दिस इज़ कॉल्ड मूवी. So thus video data representation is basically the representation of images changed with time. तो अब वीडियो को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? असल में आप अब वीडियो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप इमेजेस ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बिकॉज इमेजेस आर चेंज विद टाइम. फॉर एग्जांपल एज आई सेड 30 फ्रेम्स पर सेकंड, एक सेकंड में आपने 30 इमेजेस को चेंज कर दिया वन आफ्टर अनदर. सो उससे आपको मूवी का गुमान होता है, मूवी चलती हुई नज़र आती है आपको. तो वीडियो इज़ नथिंग बट बेसिकली दी मूविंग पिक्चर्स विच आर मूव्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम one after another, that is sequentially. So how video can be stored? Obviously in a video particular images are stored, and दो वो images किस तरह store होती हैं वो आप देख चुके हुए हैं. We have already discussed how images are stored. तो वो images हमने देखी हैं किस तरह स्टोर होती हैं. उस इमेजेस का ही ये सीक्वेंस है, उस इमेजेस को की ही एक सीरीज़ में इसको चलाया जाता है. तो जिस तरह से वो इमेजेस स्टोर होती हैं, इसी तरह से वीडियो भी स्टोर की जा सकती है. वीडियो फाइल्स आर आल्सो कॉल्ड मल्टीमीडिया फाइल्स. एज यू नो दे कंटेन द ऑडियो एंड इमेजेस as well. It may contain other forms of data as well, for example text and numbers as well. So they are called multimedia files. So data representation का टॉपिक जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. हम बात कर चुके हुए हैं टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन की, हम बात कर चुके हुए हैं image representation, we have also discussed audio representation, and then finally we have discussed video representation. इस हवाले से अगर आपको कोई भी सवाल हो तो then you can ask in the comments in YouTube, in my YouTube lecture, this lecture. And my dear students, you can also ask the questions in our WhatsApp group as well. अभी तक के लिए इतना ही है. So that's it. Thank you very much.